बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो न्यू बुक आई है उसका जो पोएम नंबर 4 है गुड टिम्बर, उनकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। प्री रीडिंग एक्सरसाइज। द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्री, रीड द लाइन एंड गेस द थीम ऑफ द पोएम। अच्छा, इसको लाइन को पढ़ो और गेस करो थीम। आई थिंक द थीम ऑफ द पोएम वुड बी द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। As much difficulties you will face, as much stronger you will be, because good qualities always develop in difficulties। ठीक है। अच्छा, ये पोएम नंबर 4 के नोट्स भी हैं सारे। एक्सरसाइज नंबर 1, वर्क इन पेयर्स। इसकी मीनिंग सर्च करनी है बस। इनकी जो 6 वर्ड्स हैं मीनिंग्स। टिम्बर मतलब वुड, लकड़ी। स्क्रबी मतलब इन्फेरियर इन साइज और क्वालिटी। टॉयल मतलब हार्ड वर्क। पेट्रॉर्च मतलब मेल हेड ऑफ अ फैमिली। काउंसल एडवाइस। स्कार्स मार्क्स, निशानात जो होते हैं उसको स्कार्स को बोलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, MCQs टाइप है। द पोइम एक्सप्लेन टू अस दैट गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप इन हार्डशिप। नंबर बी, नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग मीन्स acquired a prominent position। ठीक है। ओके। नंबर 3, बट लिव्ड एंड डाइड एज बिगेन पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स डैश ह्यूमन बींग एन एफर्टलेस। नंबर 4, द पोएम गुड टिम्बर द पोइट डिस्कस थीम्स ऑफ नर्चर, नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट। नंबर 5, the poem teaches us that the people reach their true potential by overcoming adversities. Number 6, but lived and died as scrubby things means lived a dash a n dash life, unimportant life. Number 7, by sun and cold, by rain and snow dash is literary device। ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ये ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है। ब्रोकन ब्रॉच इन द लास्ट स्टेंजा इज द एग्जाम्पल ऑफ नन ऑफ देम। ब्रोकन ब्रांच, ये भी एग्जाम। ओके। अच्छा, उसके बाद है नंबर एक्सरसाइज नंबर 3, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टिम्बर सोल सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू द मैसेज ऑफ द पोएम। इस यही मैसेज है। द पोइट हैज आर्टफुली कंपेयर्ड गुड टिम्बर विद गुड पीपल। He believes that it is not easy for both timber and people to become good without going through hard times. It is bare fact that the more they suffer, the more they become worthwhile and beneficial for the society. Number 2, what happens? Number 2, what happens to the people who work hard? The people who work hard face many difficulties in their life. They work hard for a better life but does not come easily. One has to bear hardships in order to live a perfect and meaningful life. So when he starts hard working, the challenges appear one by one in every step of his life. He faces every challenge that makes his life meaningful. Number 3, how can we achieve one's true potential in life according to the poem? One can achieve his true potential only when he faces hardships, difficulties, and tough times with courage and determination. According to the poet, a man becomes strong when encounters and overcomes adversity in life. Hardships, unfavorable conditions, and difficult situations polish our abilities and capabilities. A person does not become strong if he gets everything easily without putting in hard work. A person should learn to achieve such qualities from a good timber। ठीक है। नंबर 4, why does the poet suggest people to be good like good timber? The poet wants to reveal a useful message for his readers. He compares an ordinary tree to a good timber. An ordinary tree does not have any prominent position in the forest because it spends, ये spends है, भूल गया हूँ मैं, its time as it came to this world. It neither tries to change the position nor dares to bear hardships for a better position. On the other hand, a good timber remains ready to face hardships of life. It becomes more perfect when faces more storm.
So the poet suggests that the people to be good like good timber and face the difficulties of life. In such way your position will be strong and meaningful. ठीक है. Number 5. Which poetic devices are used in the poem? There are several poetic devices used in the poem Good Timber, but the most prominent are given below. Metaphor यूज़ की गई है, personification, hyperbole, alliteration यूज़ की गई है. ये political poetic devices यूज़ किए गए हैं. Central idea क्या है? The central idea of the poem Good Timber is that in order to become good and beneficial, one has to face hardships and difficulties in life. Both timber and man have to overcome adversity with courage and determination. Struggle is a key to success to live a perfect, valuable life. Otherwise, both of them die without achieving anything worthwhile in their life. Next है 7. How does this poem relate to your life? A man always ignores to face the difficult situation of life. When a situation comes, she turns his face from and starts another work. Resultantly, she creates a habit of doing easy things. So when a difficult problem occurs, we become helpless to face it because we have not made ourselves habitual of facing such difficult problems. It is related to every second person of our country. In this sense, poem is related to us. It tells us our drawbacks. We should be like a good timber which teaches us to face the difficult प्रॉब्लम्स. नंबर 4 एक्सरसाइज जो है पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ किए गए हैं उनका लिस्ट बनाओ और एक एक एग्जाम्पल दो. थ्रू आउट गुड टिम्बर मेलॉक मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस. दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोले. देखो ना हाइपरबोले का एग्जाम्पल भी है द होल्ड काउंसल विद द स्टार्स. बढ़ा चढ़ा के पेश करना एक चीज़ को. दिस एंटायर पोएम इज एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग ट्रीज टू ह्यूमन बींग्स. ये मेटाफर है. द ट्रीज मैंशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस रिप्रेजेंट समवन हु हैज़ नेवर हैड टू फाइट फॉर एनीथिंग इन देयर लाइफ. दिस मैन हैड मोर देन इनफ सन एंड स्काई, एयर एंड लाइट. Although this initially seems like a good thing, the speaker turns the text in a different direction. Alliteration भी यूज़ की गई है इसमें. फॉर्मल डिवाइस है. और उसके अलावा ब्रोकन ब्रांचेस देखें. फॉर एग्जांपल इन द पोएम ब्रोकन ब्रांचेस इन स्टेंजा 4 एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रेंथ इन स्टेंजा 3. ठीक है, ये एलिट्रेशन यूज़ की गई है ब्रोकन ब्रांचेस. अच्छा, उसके बाद है नंबर 5 क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम की देनी है. पोएटिक डिक्शन पोएट जो है बम्बास्टिक वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं. इन्होंने अपडेटेड वर्ड यूज़ किए हैं. टिम्बर यूज़ किया है. देखो सिंपल वर्ड वुड के लिए, लेकिन ये मेटाफोरिकली वर्ड यूज़ किया है. डिवाइसेस बहुत यूज़ किए हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. बहुत मुश्किल है कि समझने के लिए. थीम कौन सा है? मेलॉक के जो थीम्स हैं स्ट्रगल, फुलफिलमेंट एंड नेचर. दोज हु लिव थ्रू ब्रोकन ब्रांचेस एंड स्टॉर्म्स विल बिकम गुड टिम्बर. दिस थीम इज़ कॉमन विद इन मेलॉक्स वर्क. ही वॉज ऑफन कंसर्न विद डिपिक्टिंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, different ways life can be lived, and how the most fulfillment lives come to be. By using nature as the source of his imagery, he is tapping into a source that all people are familiar with. The extended metaphor भी use किया है देखो उसमें. That lasts throughout this poem ensures that everyone understands what the strength is that he is talking about. A fulfillment life can only come after one has worked hard. This is roundabout way of saying that nothing worth has comes easy. ठीक है. अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है इसकी ब्लॉक की है. 4 स्टेंजा हैं इसमें. ठीक है, और 6 लाइन्स और सेस्टेट्स में सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 6 लाइन्स. 6 लाइन्स हर स्टेंजा में है. मोस्ट वेल नोन पीसेज है ये. अच्छा, स्ट्रक्चर जो है राइमिंग स्कीम इसमें मौजूद है. दिस लाइन्स कम फ्रॉम ए राइमिंग स्कीम में है. ए बी बी सी सी अल्टरनेटिंग. ठीक है, पोइट स्टेंजा है. उसके अलावा जो राइमिंग पेयर्स कैरी वगैरह वगैरह जो भी है इसमें, लिरिक भी है, कपलेट भी इसमें दिया गया है वगैरह सही तरीके से. अच्छा, लैंग्वेज. इस पोएम में लैंग्वेज जो है आम लोगों की लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो वेल ब्रेड पीपल वालों के लिए है. आम लोगों की लैंग्वेज है लेकिन मेटाफोरिकली यूज़ की गई है.
फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। फिगरेटिव पोएटिकल डिवाइसेस बहुत सारे यूज़ किए गए हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज की वजह से लॉफ्टीएस्ट थीम को इन्हांसमेंट मिल रही है। मैसेज जो है इसका, इन ऑर्डर टू बिकम गुड एंड बेनिफिशियल वन हैज़ टू फेस हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। मुश्किलातें बर्दाश्त करनी है ज़िंदगी में आप लोगों को, गुड टिम्बर की तरह। वो डिस्करेज एडवर्सिटी और सब कुछ बर्दाश्त करता है गुड टिम्बर। नंबर 6 जो है ये सेल्फ वर्क है। आप लोगों ने एक पोएम लिखना है, पोएम आप लोग अपना अपना लिख सकते हैं। नंबर 7 जो है ये देख लें, लाइफ ग्रोज व्हेन अ पर्सन कम्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन। इसको एलाबोरेट करना है, ठीक है। इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट अ मैन डज नॉट स्ट्राइव फॉर अ न्यू थिंग वाइल ही इज़ ऑलरेडी इन कंफर्ट। अगर इंसान कंफर्ट जोन में होता है तो लाइफ ग्रो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कोशिश नहीं करता है। फिर कंफर्टेबल मैन हैज़ नॉट enthused फॉर डूइंग वर्क। when someone comes out of the comfortable life into the hard realities, she starts to think the way to save himself or herself from the hard realities of life. In hardship one person learns more and more because adversity makes a man perfect, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 8 जो है ये देख लें, ये एक्सप्लेनेशन देनी है हर लाइन की, हर स्टेंजा की। 4 स्टेंजा हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा, मैं नहीं समझा रहा हूँ इतना ज़्यादा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इनसे समझ ले सकते हैं, या आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ये नोट्स दे सकता हूँ, ठीक है। 100 रुपीज़ इसके अकेडमी चार्जेस हैं। ल्यूसी ग्रे, उसके बाद ये ल्यूसी ग्रे है। ल्यूसी ग्रे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।